3 years from the due date for filing annual return for the financial year to the demand relates to, or within 3 years from erroneous refund. And 74 में 5 years. Therefore, the time limit to issue show cause notice 2 years 9 months और यहाँ है 4 years 6 months. क्योंकि यहाँ ऑर्डर से 3 महीना पहले इशू करना पड़ता है, तो 3 years minus 3 months करोगे तो 2 years 9 months आएगा, और 5 years minus 6 months करोगे तो 4 years 6 months आएगा. Okay. There's one more rule 142 which says proper officer may communicate the details of tax interest penalty as proposed by him to taxable person before service of show cause notice. It is called as pre-notice consultation. एक separate form है DRC. One and 1A. So pre-notice consultation issue होता है, which is DRC 1, and 1A is basically the show cause notice. सर डायरेक्ट शो कॉज नोटिस इशू कर सकते हैं, हाँ, पर ऑफिसर के पास ऑप्शन है कि पहले एक वार्निंग दे देगा, प्री नोटिस कंसल्टेशन, कि मैं नोटिस इशू करने वाला हूं, ये ऑप्शनल है. I have written it wrongly. One is the show cause notice, 1A is the pre-notice consultation. Yeah, the time limit is always for show cause notice. Pre-notice consultation is obviously optional. Okay. Now this I have not seen department do it on a regular basis, but for bigger clients they do this. Say suppose it's a recurring matter. Recurring matter meaning tax rate का issue है या valuation का issue है. So what will happen is, if they have issued for FY 23-24, they will also issue for FY 24-25. Correct? Now, so इसके लिए एक शो कॉज नोटिस आएगा, इसके लिए और एक शो कॉज नोटिस आएगा. Department has an option. Instead of issuing this show cause notice, they can issue a statement saying that all the facts, circumstances are same as first one, and खाली demand कितना है वो बता दिया. So basically it will save paper, क्योंकि सारे चीज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को नहीं लिखना पड़ेगा वापस. That's the objective of statement. Statement can be issued only when the matter is same, not when the matter is different. Because if the matter is different, then they will have to issue a show cause notice. Have you come across any statement? Department मैं जितना देखा हूं for smaller or medium size clients,
they prefer issuing fresh show cause notice, बिकॉज उनके लिए ना फाइनेंशियल ईयर वगैरह चेंज करना इज मोर इजी। जैसे आप लोग भी करते हो ना, 31 मार्च 24 रहता है, उसको 25 करके एडिट करके एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह, तुम लोग भी तो वैसे ही करते हो। प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑन दिस डेट, खाली ईयर चेंज कर दिया। सेम वे इवन डिपार्टमेंट प्रिफर्स दैट rather than issuing a statement. Okay. What if the show cause notice is stayed by court? ऐसा भी हो सकता है सर, हाँ, stayed by court. So you can file a writ petition to the high court saying that ये लोग को रोको, ये लोग नोटिस इशू करने वाला है। पर सर हम लोग को पहले कैसे पता चलेगा? ऑडिट चल रहा था और वो लोग ऑडिट रिपोर्ट दे दिए। ऑडिट के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? शो कॉज नोटिस। उसी समय में हाई कोर्ट जा सकता हूं दैट प्लीज टेल देम नॉट टू इश्यू शो कॉज नोटिस, क्योंकि ये मैटर जो वो लोग उठा रहे हैं ना, वो वैलिड ही नहीं है। नाउ इफ इट इज स्टेड बाय हाई कोर्ट, तो जितना टाइम के लिए स्टे रहेगा, that time period will be excluded for counting 2 years 9 months and 4 years 6 months. जितने टाइम के लिए स्टे रहेगा कोर्ट का, उतना टाइम पीरियड विल बी एक्सक्लूडेड फॉर काउंटिंग द टाइम लिमिट टू इश्यू शो कॉज नोटिस। क्योंकि जितना टाइम स्टे है डिपार्टमेंट इश्यू ही नहीं कर सकता है, तो दैट टाइम लिमिट विल बी एक्सक्लूडेड। एंड द लास्ट पॉइंट विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, से सपोज डिपार्टमेंट ने 74 का नोटिस इशू किया एंड कोर्ट में आई एम एबल टू प्रूव दैट 74 इज नॉट देयर, देन इट इज डीम्ड दैट नोटिस वाज इशूड अंडर 73। इसका एक अच्छा एग्जांपल देते, देखो 22 23, 23 24, 24 25, 25 26, 26 27, 5 years का नोटिस इशू हुआ मुझे फ्रॉड के केस में, एंड द नोटिस डेट वाज 31st October 2027. Can you tell me, is it valid for FMS case? खाली पहले ईयर का चेक कर लो, पहले ईयर के लिए वैलिड है तो सारे ईयर के लिए वैलिड है। पहले ईयर का ड्यू डेट क्या होगा? 31 दिसंबर 2023। यहां से ऐड करो 4 years 6 months, 4 years 6 months, 5 years ऐड करोगे तो 28 पहुंचोगे। 30th June 28 इज द नोटिस वैलिड? यस। अब इफ आई एम एबल टू प्रूव इन द कोर्ट कि एफएमएस का केस ही नहीं है, इट इज अदर देन एफएमएस, तो क्या हो जाएगा? नोटिस नाउ विल बी अंडर 73 और 74। नोटिस नाउ विल बी अंडर 73। ये लॉ में ये लिखा हुआ है कि अगर 74 इज हेल्ड टू बी इनवैलिड, देन इट इज डीम्ड दैट नोटिस वाज इशूड अंडर 73। अगर ये नहीं लिखता तो इमेजिन अब वो लोग को नया नोटिस इशू करना पड़ता, और अब तो कुछ भी नहीं मिलता। तो इसीलिए लॉ में ये लाइन लिखा हुआ है कि 74 अगर इनवैलिड प्रूव हो गया तो इट इज डीम्ड दैट इट वाज इशूड अंडर 73। अब 73 के लिए चेक करो फर्स्ट ईयर के लिए वैलिड होगा क्या? नहीं, क्योंकि फर्स्ट ईयर का टाइम लिमिट यहां से अगर 2 years 9 months जोड़ोगे तो आएगा 30th September 2026। सेकेंड ईयर के लिए 30th September 2027। तो 2 साल का डिमांड तो बच गया, बाकी के लिए वैलिड है। सो कैन यू विन 40% ऑफ द केस जस्ट ऑन वन ग्राउंड? एंड 40% इज अ गुड नंबर। You can win only on one ground, that it was not a case of
fraud. And the moment a particular thing is being done by entire industry, tell me, कोर्ट क्या बोलेगा? डिपार्टमेंट को कुछ भी बोलने दो, कोर्ट क्या बोलेगा? इफ द एंटायर इंडस्ट्री इज डूइंग समथिंग एंड सबके खिलाफ नोटिस इशू हुआ है, तो कोर्ट क्या बोलेगा? कोर्ट बोलेगा अदर देन एफएमएस बिकॉज इट वाज अ इंटरप्रिटेशन इशू. ओके, ठीक है. चलिए ये 3 पॉइंट पढ़ते हैं विच इज कॉमन इन 73 एंड 74. इशू ऑफ स्टेटमेंट. The proper officer may serve subsequent to any notice or notices served a statement containing details of GST not levied, paid or short levied, short paid or erroneous refund for a subsequent period. Statement is deemed to be a notice. Such statement shall be deemed to be service of notice on such person, subject to the condition that the grounds relied upon for subsequent period are same as mentioned in earlier notice. Then, if the service of notice is stayed by order of a court or tribunal, then such period shall be excluded for computation of above mentioned time limit. If the notice is stayed. And a note on deemed notice. Let's see this. If the appellate authority or tribunal or court concludes that extended period of limitation meaning 74, extended period of limitation cannot be invoked, then tax shall be recovered for normal period of limitation. Normal period of limitation matlab 73. As if notice was issued for normal period. Okay. Now, what do you think, people? Will there be some discount schemes in GST? I mean, थोड़ा पेनल्टी का वेवर दे रहा है गवर्नमेंट कि इतने टाइम में पे कर दो, थोड़ा पेनल्टी कम कर दूंगा. बिकॉज सी, प्लीज अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट को भी बहुत खर्चा करना पड़ता है इन लिटिगेशन. इट्स नॉट इजी फॉर देम इवन टू लिटिगेट. और मैटर्स कोर्ट में चलते रहते हैं. सो डिपार्टमेंट को भी बहुत डिफिकल्टी होता है. एंड दैट्स व्हाई, वुड यू बिलीव, इन बिल्ट डिस्काउंट स्कीम है. इनफैक्ट अभी तो गवर्नमेंट 1718 से 1920 तक वैसे भी डिस्काउंट स्कीम्स लेके आ रहा है, बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. What we have is inbuilt discount schemes on 73 and 74. But tell me one thing, डिस्काउंट क्या चीज का मिलेगा? टैक्स का, इंटरेस्ट का, पेनल्टी का? नहीं, इनबिल्ट खाली पेनल्टी का. कोई स्पेशल स्कीम गवर्नमेंट लेके आएगा तब इंटरेस्ट का भी लेके आएगा. बट अदरवाइज इनबिल्ट द discount is only on penalty, not on tax and interest. Okay. Okay. Never use the word discount schemes in exam. This is only for your understanding. You'll call it as relief from penalty. हाँ, टैक्स का डिस्काउंट स्कीम चाहिए.
If government starts giving this, who will pay full tax? इनफैक्ट इट शुड बी डिस्करेज, नहीं तो सबको एनकरेजमेंट मिलता है कि हाँ चलो अभी टैक्स एवेट कर लेते हैं, स्कीम तो आ ही जाएगा। ओके, अभी ये एक केस पढ़ने से पहले ना हम लोग ये डिस्काउंट स्कीम्स फॉर पेनल्टी समझ लेते हैं, देन वी विल राइट हियर, हम लोग इस स्पेस में लिखेंगे, फिर वी विल रीड ए। नाउ वी विल हैव 3 कॉलम्स, केस, और 2 छोटे से कॉलम, एक 73 के लिए, एक 74 के लिए। Here what you are learning is there in 74A also. Is it sir? हाँ, 74A में पेनल्टी के लिए एफएमएस और अदर देन एफएमएस का डिस्टिंक्शन किया है। So they have not completely removed FMS and other than FMS. अभी भी वहां भी डिस्टिंक्शन है, डिस्काउंट में डिस्टिंक्शन है, मतलब केसेस तो चलेगा। A, if tax, interest and penalty, if any, has been paid before service of notice, before service of SCN, before service of SCN, you have paid the amount even before the notice was issued. And notice was served. Careful, यहां लिखा हुआ है बिफोर सर्विस, सेक्शन में सर्विस लिखा हुआ है, बट आईसीआई मॉड्यूल में इश्यू लिखा हुआ है। व्हाट विल वी डू सर? यू विल गो बाय सर्विस, क्योंकि सेक्शन टॉक्स अबाउट सर्विस। ये फर्स्ट पॉइंट में कंफ्यूजन है, बाकी सब जगह जो आईसीआई मॉड्यूल में वही सेक्शन में है। सेवेंटी 3 पूरा डिस्काउंट सर, पूरा डिस्काउंट। हाँ, मैक्सिमम कितना लगता है? मैक्सिमम 73 में लगता है 10% ऑफ टैक्स, और 74 में सर, 74 में 15% ऑफ टैक्स हैज टू बी पेड। और मैक्सिमम कितना लगता है सर? 100%। तो डिस्काउंट कितना हुआ? 85%। इज इट अ गुड डिस्काउंट? एनी डे सर। मतलब अगर हमको पता ही है कि फ्रॉड किया ही है, तो नोटिस से पहले ही पे कर दो, तो एटलीस्ट 85% तो बच जाएगा। बी, सेकेंड ऑप्शन ये भी मिलता है, इफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, इफ एनी, has been paid within 30 days from issue of, यहाँ इशू है, यहाँ दोनों जगह इशू है, लॉ में भी और मॉड्यूल में भी। 30 days फ्रॉम इशू ऑफ एससीएन। दूसरा मौका आपको मिलता है वंस नोटिस इज इशूड। शो कॉज नोटिस इशू हुआ और आपने 30 डेज के अंदर अगर पे कर दिया। 73 में पेनल्टी विल बी निल। वाह,
74 में पेनल्टी विल बी 25% ऑफ टैक्स। डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 75%। अगेन अ गुड डिस्काउंट। सी, if tax, interest and penalty is paid within, this we have to, within 30 days from communication of demand order। ये बहुत फ्यूचर डेट है। कम्युनिकेशन ऑफ डिमांड ऑर्डर, ऑर्डर इशू हो गया है। कम्युनिकेशन ऑफ डिमांड ऑर्डर, यहां ना ऐसे बाइफिकेशन कीजिएगा, क्योंकि 73 में कोई रिलीफ नहीं है। 10% ऑफ टैक्स और 10,000, whichever is higher। एंड 74 में इसके लिए रिलीफ है 50% ऑफ टैक्स। ऑर्डर के बाद भी गवर्नमेंट 50% रिलीफ देने को रेडी है। जस्ट इमेजिन द अमाउंट विच इज स्पेंट ऑन लिटिगेशन। एंड लास्ट वन, मैक्सिमम पेनल्टी। मैक्सिमम पेनल्टी ये तो 10% और 10,000 ही है, और यहाँ है 100% ऑफ टैक्स। 100% ऑफ टैक्स। 100% ऑफ टैक्स हो गया। Done? Okay. Now let's read the first one, A, which is a case of 73 where there is no penalty। बाकी का प्रोविजन नहीं है आपके बुक पे, बिकॉज यू विल बी एबल टू राइट द सेम लैंग्वेज विद द वन एग्जाम्पल। लेट्स सी। द पर्सन, नो एफएमएस का केस है, अमाउंट पेड बिफोर एससीएल, देन देयर बी नो पेनल्टी। The person chargeable with GST or refund of such tax may pay the amount of such GST on the basis of own ascertainment or on the basis of tax ascertained by proper officer before service of notice along with interest, and inform the proper officer of such payment in writing, who on receipt of such information shall not serve any notice for the amount so paid. However, if proper officer finds any shortfall, he may issue the notice for such shortfall and recover the amount. It is to be noted that above option is not available to FMS। FMS में कभी nil नहीं होगा, and it makes sense because can it be nil for FMS?
Okay. Ab, let's have a look at this note. Very important note has been asked. हाँ ये 73 का ही तो है. रुको अभी एग्जाम्पल करेंगे. दैट टाइम आई विल अंडरस्टैंड व्हाट यू अंडरस्टूड. पीपल, if this nil nil which you see na, this nil and this nil, the penalty under 73 is payable without any relief if self-assessed tax or any amount collected as tax has not been paid within 30 days from due date. अगर ड्यू डेट के 30 डेज के अंदर आपने पेमेंट नहीं किया टैक्स का, तो आपको ये 73 का रिलीफ निल वाला नहीं मिलेगा. आई हैव अ क्वेश्चन. क्या ऐसा हुआ है कि कभी कोई क्लाइंट 30 डेज के बाद GSTR 3 भी फाइल कर रहा है? मतलब ड्यू डेट था 20th Feb. इज इट पॉसिबल दैट ही इज फाइलिंग इट इन March 31st? हाँ पॉसिबल है सर. दैट मीन्स वो तो उसका सेल्फ असेस टैक्स हो गया. इफ ही पे सेल्फ असेस टैक्स आफ्टर 30 डेज, देन 73 का रिलीफ नहीं मिलेगा. बट क्या आपने कभी पेनल्टी भरवाया है किसी भी क्लाइंट से विदाउट रिसीविंग अ नोटिस? नहीं. एंड दैट्स व्हाट CBIC हैज क्लैरिफाइड. लिखेंगे सर्कुलर हैज क्लैरिफाइड दैट पेनल्टी will be applicable only when SCN is issued by department. If department has not issued show cause notice, तो अपने आप पेनल्टी जाके नहीं भरते हो. प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. खुद जाके पेनल्टी कभी नहीं भरते हम. इनफैक्ट CBIC हैज ऑल्सो क्लैरिफाइड दिस कि अगर आपने 30 डेज के बाद पेमेंट किया है ड्यू डेट से, ड्यू डेट 20th Feb था, आपने लेट पेमेंट किया, तो भी आपको पेनल्टी नहीं भरना है अनटिल एंड अनलेस शो कॉज नोटिस इज इशू. अगर शो कॉज नोटिस इशू हुआ तो पेनल्टी लगेगा, फिर नील का रिलीफ नहीं मिलेगा. ओके. नाउ you will write here, refer page dash of notebook for example. Now we will write an example to see what we have understood. लिखा. Okay, in your notebook, new page, give a heading adjudication. And you are going to write this. Answers are hidden. You find the answer yourself and then we'll see. पहला ध्यान तो आप लोग का जाएगा आंसर में क्या पार्ट दिख सकता है. Service is when you have received it. Issue is when the officer has dated it. We'll see 1 to 24 again. First you write this and solve it.
एंड इस क्वेश्चन में क्या आप बता सकते हो फर्स्ट लाइन पढ़ने के बाद? व्हेन इज इट इशूड एंड व्हेन इज इट सर्व्ड? Same day. So I have kept both same to avoid any confusion because it was dated 4th June and same day received भी हो गया. Done. Good.
ओके, तो if it is paid on 3/6, that is before SCN, nil and 15%. Agreed? Okay, if it is paid within 30 days of SCN, nil and 25%. अब डी वाला देखते हैं. If it is paid within 30 days of demand order, नहीं, थर्ड वाला डिमांड ऑर्डर है ना, थर्ड वाला within 30 days from demand order, 10% or 10,000, whichever is higher, and 50%. What about this case? 7/8/2020. After 30 days of SCN, but before order. It has to be same as C. You can't make him pay more just because he's paying early. Within 30 days of demand order means any time before demand order also. एक गुड मॉर्निंग का केस हो रहा है. 3rd June इज बिफोर नोटिस ना. सेकेंड एंड थर्ड सेम, ए एंड बी सेम कहां से है? आई नो 12 बज रहे हैं, पर अभी आप में 12 नहीं बजने चाहिए. लास्ट वाला फुल 100% and 1 lakh. 1 point in this will be asked for 3 marks. हाँ, ये थोड़ा सारा सारा थोड़े देगा आपको, एक केस देगा इसमें से कि 73-74 में क्या पेनल्टी रहेगा. हैज इट बीन आस्क्ड सर? यस. ओके, चलिए. अब थोड़े छोटे छोटे प्रोविजन है, बट डी डी में क्या करना है आपको? 100% पे करवाना है. ही हैज पेड बिफोर द ऑर्डर, 100% पे कराना है. डी इज बिफोर ऑर्डर, तो 25 वाला तो नहीं मिल सकता है, बट 50% वाला मिल जाएगा. Okay. Then there is section 75 with some additional points for 73 and 74. All these can be asked as case study. Okay, बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडीज है इस पे. आई विल गिव यू केस स्टडी, यू गिव मी व्हाट यू थिंक, फिर हम प्रोविजन देखेंगे. एग्जाम्पल, आप प्लीज डोंट टेक इट इन रियल सेंस और कहीं पोस्ट मत कर देना ये सब चीज. एग्जाम्पल, आई एवेडेड टैक्स ऑफ 200 crores. छोटा मोटा टैक्स एवेजन नहीं, सीधा 200 crores. एग्जाम्पल, 200 crore टैक्स एवेजन. I was caught. I immediately paid tax, interest and 15% penalty. क्या 85% का वेवर मिलेगा? हाँ. Can department initiate jail proceedings against me when I have paid tax, interest, penalty? Can department initiate jail proceedings against me when I have already paid tax, interest, penalty? The winning answer is yes. Just because you have paid tax, interest, penalty doesn't mean फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग नहीं देंगे. ऐसा नहीं होता है. ये देखो, ये गलती मत करना. पेनल्टी का वेवर है, जेल का वेवर नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस. दिस इज व्हाट इज गिवन इन 75.
फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। The expression all proceedings in respect of such notice, क्योंकि shall not include proceedings under 132, that is prosecution, जेल का प्रोसीडिंग फिर भी शुरू किया जा सकता है। अब ये फुटनोट पढ़ के देखते हैं। On payment of tax interest penalty under 73-74, the moment you pay 73-74 का टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी ना, बाकी पेनल्टी का कोई प्रोसीडिंग नहीं होगा, शो कॉज नोटिस नहीं इशू होगा, पर क्या प्रोसिक्यूशन हो सकता है? द आंसर इज यस। प्रोसिक्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी। हम इसको बोलते हैं सिविल लायबिलिटी वर्सेस क्रिमिनल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटीज टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, क्रिमिनल लायबिलिटीज spend some time. The spend some time is different. Okay, ठीक है। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी। ये अगर आप पोस्ट करोगे आप भी फंस जाओगे। आई विल क्रिएट सच एग्जाम्पल। You evaded tax of 200. मुनीश, वही तो। ಪವರ್ ಪವರ್ ಗೋಸ್ಕರನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬಂತಾ? ಆಚೆ ಇದೆ. हेलो। यस। सो there's some issue with the system here. Now, so I was talking about your tax evasion. You evaded tax of 2 crore. I was just driver. वो आपका वो गुड्स लेके जा रहा था। You evaded tax of 200 crores. I was just a driver. मेरे को भी पकड़ लिया है, मेरे को भी जेल में डाल दिया है। My question to you is, if you are able to prove that you have not evaded tax, will I also be freed? And the winning answer is yes. That means अगर मेन प्रोसीडिंग खत्म हो गया है तो सारा कनेक्टेड प्रोसीडिंग भी खत्म हो जाएगा। खाली 2 ही सेक्शन है जिसमें ये पॉइंट अप्लाई नहीं होता है, बाकी जब भी मेन प्रोसीडिंग खत्म होता है सारा कनेक्टेड प्रोसीडिंग भी खत्म हो जाता है। इज इट सर? क्यों पकड़ा था मेरे को? मैं मेन टैक्स एवेडर था या आप मेन टैक्स एवेडर थे? हाँ बोलो, हम मेन टैक्स एवेडर थे। हाँ, यू वर द मेन टैक्स एवेडर, राइट। मैं तो कनेक्टेड पर्सन था, तो अगर आपको छोड़ दिया है तो मेरे को भी छोड़ देगा। ए आर यू क्लियर?
Okay, let's see this. Closure for connected persons. In case notice in a proceeding is issued to main person and some other person, and the proceeding against the main person is concluded, then the proceeding under 122 and 125 against other persons are also deemed to be concluded. Remember, not 129 and 130. 129 is search during transit. Search during transit. And 130 is confiscation. ये दो ऐसे प्रोविजन है जहां कनेक्टेड पर्सन को हम लोग ऐसे ही नहीं छोड़ते, वहां जो पेनल्टी लिखा हुआ है वो पे करना पड़ता है. इज इट सर? या 129 एंड 130 बहुत डेंजरस है. मे बी वेन एवर नेक्स्ट टाइम वेन वी मीट तब वो आएगा. 129 एंड 130. ओके, this is the widest point in section 75. इनफैक्ट इस पॉइंट के हिसाब से सारे केसेस फ्रॉड ही है. यू जस्ट रीड दिस एंड सी हाउ वाइड इज द डेफिनेशन ऑफ सप्रेशन ऑफ फैक्ट. पढ़ के देखो. Anything which I have not declared in the return is suppression. Anything which I have not declared in a statement is suppression. Anything which I have not declared in a report is suppression. They have kept suppression so wide that almost everything will get covered into suppression. This will be challenged in the courts because suppression will take color from the words before it. What are the words before suppression of fact? The words before suppression of fact are fraud, willful misstatement और उसके बाद लिखा हुआ है suppression of fact. पर ये डेफिनेशन देखो सप्रेशन ऑफ फैक्ट का. कुछ भी जो रिपोर्ट नहीं किया सप्रेशन. तो मैंने आरसीएम लायबिलिटी रिपोर्ट नहीं किया, सप्रेशन. ओके, नाउ क्या कभी ऐसा हुआ है कि यू हैव सेंट अ वर्किंग टू योर पार्टनर और मैनेजर and it has come back to you on your face? Sir, don't ask. नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है. मतलब आपने वर्किंग बना के भेजा या टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करके भेजा या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके भेजा और सीधा मेल आता है प्लीज चेक इट अगेन प्रॉपरली. You know what it is called? Remand back. Is it, sir? Yes, it's called as remand back. क्या ऐसा रिमांड बैक कोर्ट या ट्रिब्यूनल भी कर सकता है टू द ऑफिसर? ऑफिसर ने एक ऑर्डर पास किया है एंड कोर्ट इज लाइक कुछ तो शर्म करो, थोड़ा तो शो कॉज नोटिस क्यों इशू किया है, रिप्लाई कंसीडर करना चाहिए था, प्रोविजन कंसीडर करना चाहिए था, कुछ पढ़ भी लिया करो. Can a higher court remand back or send the file back to the officer? The answer is yes. और जब ऐसा होगा तो ऑफिसर को नया ऑर्डर पास करना पड़ेगा. कितने टाइम में? यू रीड एंड टेल मी. ऑफिसर को नया ऑर्डर कितने टाइम में पास करना पड़ेगा? टू ईयर्स. सो अगर वापस आ जाता है
Court sends it back to the officer. Then officer has to pass an order within 2 years from the direction which he has received. ठीक है. Can you take unlimited adjournments? The answer is no. Adjournments to a person is only allowed 3 times. Okay. Now, something very interesting. Show cause notice 10 lakh का है. Can order be for 12 lakh? Let's see. मतलब डिपार्टमेंट ने शो कॉज इशू किया. टेल मी व्हाई आई शुडंट रिकवर 10 लाख फ्रॉम यू. और फिर ऑर्डर आया पे 12 लाख. नेवर एवर पीपल. ऑर्डर कैनॉट एक्सीड द अमाउंट इन द नोटिस. डू यू अग्री विद दिस? इमेजिन ये लॉ में लिखा हुआ है. इजंट इट कॉमन सेंस? मतलब मैं बोल रहा हूं 10 लाख पे कर देना. एंड यू से नहीं नहीं मेरा 10 लाख पेएबल नहीं है, मेरा 0 पेएबल है. एंड देन फिर ऑर्डर आता है 12 लाख पे कर देना. ऐसे कैसे? Now there can be only 3 scenarios. या तो ऑर्डर 0 हो गया है, that means you have bribed the office, sorry, you have convinced the officer very well. या ऑर्डर 4 लाख का हो गया है, मतलब थोड़ा कम हो गया है. या you are not able to do anything. ये 3 ही ऑप्शन होता है. There is never a possibility that order में more than the show cause notice is written. Are you clear? Okay. अब इंटरेस्ट अगर लिखना भूल गया ऑफिसर तो क्या वो रिकवर कर सकता है इंटरेस्ट? वुड यू बिलीव? इंटरेस्ट अगर नहीं भी लिखेगा तो भी इंटरेस्ट इज पेएबल. टैक्स या पेनल्टी नहीं लिखेगा तो पेएबल नहीं होता है. बट इंटरेस्ट इज पेएबल even if it is not mentioned in the notice or order. Is it, sir? Yes. Interest is always payable. पेनल्टी अगर नोटिस में नहीं लिखा तो क्या पेनल्टी हम ऑर्डर में आ सकता है? The answer is no. अगर पेनल्टी लिखना भूल गया नोटिस में, देन ऑर्डर में भी पेनल्टी नहीं आ सकता. Are you clear? Okay. कोई भी टैक्स रिकवरी कैनॉट बी विदाउट शो कॉज नोटिस बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है. बट देयर इज वन एक्सेप्शन, सेल्फ असेस्ड टैक्स. इफ यू हैव सेल्फ असेस्ड द टैक्स कि मेरे को इतना भरना है, तो क्या नोटिस इशू करना जरूरी है? नहीं. अगर आप ही बोलते हो कि मेरे को इतना भरना है, देन इन दैट केस this can be directly recovered and recovery provision section 79 can be initiated immediately. और ये सेल्फ असेस टैक्स को गवर्नमेंट ने डिफाइन भी किया है. इफ देयर इज अ मिसमैच बिटवीन 1 and 3B, 1 में आपने रिपोर्ट किया कि टैक्स 100 है, 3B में आपने पे किया 10 रुपीज, क्या कोई नोटिस इशू करने की जरूरत है या एक इंटीमेशन के बाद डायरेक्ट रिकवरी हो सकता है? फर्स्ट वन, सेकेंड वन डायरेक्ट रिकवरी कैन बी स्टार्टेड. एक इंटीमेशन तो आएगा विच यू हैड लर्न DRC 1C, वो एक इंटीमेशन बहुत साल पहले पढ़ा था कुछ, वो इंटीमेशन आएगा 1 वर्सेस 3B का. फिर डायरेक्ट रिकवरी, नोटिस वोटिस और कुछ 73 74 नहीं आएगा. आर यू क्लियर? और आपने असेसमेंट चैप्टर में भी देखा था बेस्ट जजमेंट एंड समरी असेसमेंट, वो तो वैसे भी स्पेशल प्रोविजन है. क्लियर? हाँ, दे विल मेंशन द पेनल्टी सेक्शन, दैट इज सफिशिएंट. अगर नोटिस में कुछ नहीं लिखा है पेनल्टी, देन इट विल नॉट बी.
There is no need to quantify it. Tax has to be always quantified. Chaliye, let's see this. Amount of tax, interest, penalty demanded in order shall not be in excess of amount specified in the notice, and no demand shall be confirmed on any ground not specified in the notice. But payment of interest is mandatory even if it is not mentioned in notice or order. And amount of self-assessed tax or interest remaining unpaid to be recovered under 79 even without any show cause notice or demand order. Okay. If penalty is levied under 73, 74, no other penalty can be levied for same act or omission under any other provision. This will be useful in penalty chapter. एक बार 73, 74 का पेनल्टी लग गया है, क्या किसी और प्रोविजन में पेनल्टी लग सकता है फॉर सेम क्राइम? नहीं, पर क्या जेल हो सकता है? हाँ, that is different. See, please understand, civil and criminal proceedings are different. Okay. अब फुटनोट पढ़ के देखो. सेल्फ असेस टैक्स includes. They have given one example. You can give a reference. Rule 88C. ये ना रूल 88C में. ओके. ये लास्ट क्रिटिकल प्रोविजन है, उसके बाद इजी प्रोविजंस है. Someone is asking, आपका कोई क्लाइंट जेल गया है क्या? Professional information cannot be shared. Concentrate. ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो तुम लोग. Now, can a doctor collect tax on health care service? No, because it is a exempt supply. और exempt supply में लिखा हुआ है कि if it is a exempt supply, then in that case no tax can be collected. बराबर, ये आपको याद है. अब say suppose doctor mentions GST on invoice. कलेक्ट कर लिया है उसने, नहीं कर सकता है मुझे पता है, पर कलेक्ट कर लिया है, तो क्या उसको ये 18 रुपीज गवर्नमेंट को देना पड़ेगा? गवर्नमेंट इज लाइक, किसके नाम से कलेक्ट किया? मेरे नाम से. तो मेरे नाम से जो पैसा कलेक्ट हुआ है ये टैक्स नहीं है, हम इसको बोलेंगे अमाउंट. Any amount collected representing as tax is to be paid forthwith. मतलब immediately. इसमें ड्यू डेट भी अप्लाई नहीं होता है 20th. गवर्नमेंट इज लाइक अभी तुरंत दो, मेरे नाम पे अमाउंट कलेक्ट किया ना. This amount is payable forthwith because you have collected an amount representing it as tax. देखो डिफरेंस है. एक टैक्स होता है, एक होता है अमाउंट रिप्रेजेंटिंग एज टैक्स. देन गवर्नमेंट इज लाइक, मेरे नाम पे अगर कुछ कलेक्ट किया है मेरे को दे देना. लाइक गणेशा फेस्टिवल में जो गणेशा का कलेक्शन होता है, दैट शुड बी यूज्ड फॉर व्हाट? गणेशा फेस्टिवल. सेम वे गवर्नमेंट इज लाइक, किसके नाम पे कलेक्ट किया है? मेरे नाम पे. जो मेरे नाम पे कलेक्ट किया है वो मेरे को दे देना. वुड यू बिलीव this is the only and only open-ended provision in taxation which I have seen throughout my life, because इस provision में there is no time limit to issue show cause notice. That means
This can be recovered any time because it's not a tax, it's an amount representing as tax. ओपन एंडेड प्रोविजन छोड़ दिया है, नो टाइम लिमिट फॉर शो कॉज नोटिस। हाँ, पर ऑर्डर का टाइम लिमिट जरूर दिया है, ऑर्डर शुड बी इशूड विद इन 1 year फ्रॉम शो कॉज नोटिस, बट शो कॉज नोटिस का टाइम लिमिट इन माई व्यू, however big the crime may be, it is actually a tax crime and not something else. You can't have a open-ended provision in taxation. आपने इतना डीटीबी देखा है, हैव यू एवर फाउंड अ ओपन एंडेड प्रोविजन की 20 साल 25 साल 30 साल के बाद भी कुछ हो सकता है? आई हैव नेवर सीन इट. I have never seen it in DT. I have never seen it in central excise. I have never seen it in service tax nor in customs. This is the only provision in the history of taxation which is open-ended. I think it will be challenged in the courts and government will lose because you can't have an open-ended provision where there is no time limit to issue notice. चलिए प्रोविजन देखते हैं. एंड ट्रस्ट मी पीपल, व्हेन यू रीड दिस प्रोविजन ना लगेगा आपको गॉड को छोड़ के सब चीज को ओवरराइड करता है. आई एम नॉट जोकिंग पीपल, यू रीड इट एंड सी कि ये क्या चीज को ओवरराइड नहीं करता है. ये पढ़ के देखो एक बार जस्ट हैव अ लुक एट द लैंग्वेज ऑफ द लॉ. मतलब इट्स अ इंटरेस्टिंग केस स्टडी फॉर टैक्सेशन पीपल. पढ़ के देखो. Just add this line in second paragraph.
हाँ, नोटिस इशू करने के बाद स्टे आया तो दैट स्टे पीरियड विल बी एक्सक्लूडेड. But a very wide provision. In fact, it overrides any other law. Okay. एनीवेज डिपार्टमेंट, अभी तक मैंने कोई केस नहीं देखा है 76 का. इफ यू कम अक्रॉस लेट मी नो. ओके, रीड 77. आपको फीलिंग आएगा दैट यू नो इट. डन. पढ़ा हुआ है 77. Okay. Now, I know you'll surely be able to give me the right answer, but let's see. पहले ना ऑडिट चलता है, जीएसटी डिपार्टमेंटल ऑडिट. क्या डिपार्टमेंटल ऑडिट करते समय रिकवरी हो सकता है? मतलब डिपार्टमेंटल ऑडिट चल रहा है तभी रिकवरी शुरू कर दिया डिपार्टमेंट ऑफिसर्स ने? नो. फिर कभी कभी ना समन भी भेजा जाता है सीएफओ को, which department has said that it should not be done on a regular basis. समन्स आता है, आप समन अटेंड करने गए, वहीं रिकवरी शुरू कर दिया, गोल्ड वॉच निकालो. नहीं सर. फिर शो कॉज नोटिस इशू होता है. कैन रिकवरी स्टार्ट ड्यूरिंग शो कॉज नोटिस? नहीं. यू वेंट फॉर पर्सनल हियरिंग एंड वहीं रिकवरी स्टार्ट कर दिया. नहीं सर. ऑर्डर पास किया, कैन रिकवरी स्टार्ट? The answer is no, it can't start for 3 months from the date of order. Can someone think why it can't start for 3 months from the date of order? Exactly right. This is the time limit to file the appeal, जो आप अपील चैप्टर में पढ़ेंगे. हाँ, तो रिकवरी ऐसा नहीं है कि तुरंत कभी भी शुरू कर दिया, बट देर आर एक्सेप्शंस. इंटरेस्ट कैन बी रिकवर्ड एनी टाइम. 1 and 3B का जिसका मिसमैच है, दैट कैन बी रिकवर्ड एनी टाइम. बाकी सब केसेस में रिकवरी कैन नॉट बी इनिशिएटेड इमीडिएटली. हाँ, वो लोग प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकते हैं, विच इज फ्रीजिंग बैंक अकाउंट एक्सेट्रा, बट नॉट विदड्रॉइंग मनी. So recovery can be initiated only after 3 months from the date of order has expired. Are you clear? Yes, क्योंकि 3 months is the time limit to file an appeal. तो अपील पे चले जाओगे तो वैसे भी लड़, we are fighting the matter, so recovery नहीं होगा. Clear with this? Okay. Then Karnataka registration has received a notice.
and order. Can recovery be made from Mumbai registration being a distinct person? Would you believe? लॉ में लिखा हुआ है फॉर रिकवरी Mumbai and Karnataka are same persons. You know how smart the law is. मतलब ऐसे दोनों अलग माने गए, बट जब रिकवरी आता है तो दोनों एक ही है, हम किसी से भी रिकवर कर सकते हैं। फिर आप क्या क्या सोच सकते हो एज मोड्स ऑफ रिकवरी, मतलब व्हाट कैन यू थिंक कि ऑफिसर कैसे रिकवरी करेगा? लेट्स सी हाउ वाइल्ड आर योर थॉट्स कि ऑफिसर रिकवरी कर रहा है, क्या क्या कर सकता है सर? बैंक अकाउंट अटैच कर सकता है, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी ले सकता है, करेक्ट। हाँ, मेरे डेटर्स को बोलेगा कि तुम इसको मत देना, हम लोग को दे देना, दैट इज कॉल्ड एज गार्निशी ऑर्डर। गार्निशी ऑर्डर, ठीक है। वाइफ के ज्वेलरी नहीं, वो नहीं है, सॉरी रॉन्ग आंसर। रिफंड रोक देगा, या रिफंड स्टॉप कर देगा। जो गुड्स उसके कंट्रोल में वो गुड्स बेच देगा, जैसे सीजर वगैरह में जो गुड्स पकड़ा है वो बेच देगा। फिर व्हाट अबाउट श्योरिटी? श्योरिटी, एक फ्रेंड ने गारंटी दिया था मेरे बिहाफ पे, क्या उस फ्रेंड से भी रिकवरी कर सकते हैं? द आंसर इज यस, व्हाई नॉट। श्योरिटी दिया है तो अब भुगतो। देन डिपार्टमेंट कैन ऑल्सो गो टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। नाम में ही लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये ना ब्रिटिश राज के समय से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, इनका काम क्या था पता पहले? अभी तो डेवलपमेंट काम है इनका, पर इन ब्रिटिश रूल, यू नो व्हाट वाज द टास्क गिवन टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स? टू रिकवर लैंड रेवेन्यू, लगान फ्रॉम द फार्मर्स। दैट वाज द जॉब ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो वो लोग एक्सपर्ट्स है कलेक्शन में। तो जीएसटी ऑफिसर एक लेटर बना के भेज सकता है, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट प्रोसीडिंग्स। तो वो लेटर बना के भेज सकता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कि ये आपके डिस्ट्रिक्ट में ना इसका ये प्रॉपर्टी है, सब बेच के पैसे दे दो। दैट इज ऑल्सो अ मोड। देन द डिपार्टमेंट कैन गो टू कोर्ट सेइंग दैट ये पे नहीं कर रहा है, मैजिस्ट्रेट आप इससे रिकवरी करवाओ एज योर फी। सो मैजिस्ट्रेट विल गेट इट रिकवर्ड एज हिज फी, एंड फिर पुलिस ऑफिसर्स को भेजेगा रिकवरी करने के लिए। वो भी एक मोड होता है। फिर वन इंटरेस्टिंग वन विच इज, say suppose there is a property dispute going on in court and it is likely that I will win and I have a tax demand, तो क्या डिपार्टमेंट कैन गो टू कोर्ट सेइंग दैट इसके फेवर में जो भी दोगे ना वो हम लोग को दे देना? वो भी कर सकता है। I mean, there are so many modes available to officers. Now the question is, कौन सा डिपार्टमेंट पहले यूज करेगा? मतलब इतना सारा मोड्स तो आप लोग ने बताया, कौन सा चीज डिपार्टमेंट पहले यूज करेगा? हाँ, अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू इज वेरी स्ट्रॉन्ग। पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी अटैच्ड until and unless it's a proprietorship. पार्टनरशिप वगैरह में पार्टनर्स से रिकवरी इज लिमिटेड, मतलब यू लर्न दैट, एक अलग ही चैप्टर है लायबिलिटी इन सर्टेन केसेस। ओके, आपने कहा कोई बैंक अकाउंट फर्स्ट हो सकता है या मूवेबल असेट फर्स्ट हो सकता है। यू टेल मी द आंसर आफ्टर रीडिंग टिल हियर। पहले 78 पढ़ना। 78 इज बेसिकली फर्स्ट 3 मंथ्स में नो रिकवरी। फिर 79 में फर्स्ट पॉइंट पढ़ के बताना कौन सा मोड पहले।
If you see, there is no order given. It can be for one or more of the following modes. No order given. He can apply in any order and any of the methods or any combination of these methods. Plus, 3 months, first 3 months के लिए कोई recovery नहीं होगा. But if the officer considers it expedient, मतलब लग रहा है उसको कि 3 महीना वेट नहीं कर सकते, ये भाग जाएगा, then in that case he can take approval in writing and start recovery proceedings even before 3 months. Okay, now see the first one. Deduction from any money owed. This is refund. रिफंड एप्लीकेशन उसने किया है, रिफंड इज ड्यू, क्या मैं रिफंड से एडजस्ट कर सकता हूं? यस. ओके. सेकेंड मेथड इज सेल ऑफ गुड्स अंडर द कंट्रोल ऑफ पीओ. क्या पीओ के कंट्रोल में जो गुड्स है वो बेच सकता है पीओ? हैव अ लुक एट इट. Yeah, all the officers. ओके. गार्निशी ऑर्डर सुनने में अच्छा लगता है, बट दिस इज बैंक अटैचमेंट. इंश्योरेंस कंपनी को बोल सकता है कि इसका जितना इंश्योरेंस है वो मेरे को दे दो. डेटर्स को बोल सकता है कि इसको जितना पैसा देना है मेरे को दे दो. गार्निशी ऑर्डर. टेल मी वन थिंग, अगर गार्निशी ऑर्डर बैंक ने फॉलो नहीं किया तो क्या? बैंक को बोला इसको पैसे मत देना, मेरे को दे देना. वुड यू बिलीव बैंक विल बी ट्रीटेड एज असेसी इन डिफॉल्ट? फिर बैंक से रिकवरी किया जा सकता है. इसीलिए जब फ्रीजिंग ऑर्डर आता है ना, बैंक इज लाइक हम कुछ नहीं कर सकते. हैव अ लुक एट गार्निशी ऑर्डर.
Okay. हाँ, this let's read it together. Recovery by sale of movable and immobile property. यहाँ प्रॉपर ऑफिसर खुद जाके मूवेबल इमोबल प्रॉपर्टी बेच रहा है. पीओ में डिस्ट्रेन पहले तो सीज करेगा any movable or immobile property belonging to or under the control of such person and detain the same until the amount payable is paid. उसको बोलेगा मैं सीज कर लिया हूं, पैसे दे दो. And in case any part of the said amount payable or the cost of distress or keeping the property remains unpaid for 30 days. सीज करने के बाद 30 days में भी सामने वाले ने पैसे नहीं दिए, then after such distress he will cause the property to be sold. Auction करवा देगा. The amount so realized from the sale of goods, movable or immovable, for recovery of dues from defaulter or recovery of penalty under 129. 129 बहुत हार्श है, वो सर्च ड्यूरिंग ट्रांजिट, उसमें भी ये मेथड यूज कर सकते हैं. शैल. अब पैसे मिले हैं, उसको पहले क्या चीज के लिए यूज करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट. जो ऑक्शन का कॉस्ट हुआ है उससे. फिर यू विल अपोर्शन इट टू द अमाउंट टू बी रिकवर्ड और पेनल्टी. फिर अदर अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डिफॉल्टर अंडर सीजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट में भी कोई दूसरा नोटिस था, उससे भी एडजस्ट कर लेंगे. एनी बैलेंस विल बी क्रेडिटेड टू ई कैश लेडजर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन और टू बैंक अकाउंट इफ ही इज अनरजिस्टर्ड. अगर 6 महीने में वो नहीं मिलता है जिसका प्रॉपर्टी है, तो इट विल बी ट्रांसफर्ड टू, ये नाम आपने सुना है, टेल मी वेदर यू नो इट. एग्जैक्टली राइट. तो 10 करोड़ का प्रॉपर्टी है, पहले 2 लाख रुपीज एक्सपेंस, उसके बाद 8 करोड़ रिकवर करना था वो कर लो, फिर बाकी का नोटिस का भी कुछ 1 करोड़ था वो भी ले लो. अभी भी पैसे बच गए हैं 80 लाख, क्या करोगे उसके? ई कैश में. अगर वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, बैंक अकाउंट भी नहीं मिल रहा है 6 महीने, कंज्यूमर वेलफेयर फंड. दिस इज लाइक सेकेंड पॉकेट ऑफ गवर्नमेंट. ओके. रिकवरी एज अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, ये बहुत हार्श प्रोविजन होता है. अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, यहाँ ना प्रॉपर ऑफिसर खुद प्रॉपर्टी नहीं बेचता है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बोलता है कि तुम जाके बेचो. रीड दिस योरसेल्फ. Okay, can you read these 4 points and tell me which one you have not understood? What? डिक्री ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर.
कोर्ट डिक्री इज बेसिकली वो केस ऑलरेडी चल रहा है एंड देन डिपार्टमेंट गोस की इससे जो भी उसको मिलेगा ना वो मेरे को दे देना। और मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं बेसिकली कि हमसे तो नहीं निकल रहा है, आप पुलिस ऑफिसर्स भेजो और आप रिकवरी करो। ओके, नेक्स्ट पेज हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, विल जस्ट कंप्लीट दीज थ्री नोट्स। कैन स्टेट सेंटर ऑफिसर रिकवर स्टेट ड्यूज? यस ही कैन। और से सपोज 10 लाख रुपीज रिकवर हुआ है, CGST 15 लाख ड्यू है, SGST 15 लाख ड्यू है, तो किसको मिलेगा? दिस इज द अमाउंट रिकवर्ड proportionate to the amount which is due। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि CGST ऑफिसर पहले पहुंचा, पहले CGST रिकवर करेगी। एंड लास्टली मार्केट वैल्यू, वो एस्टिमेट करना पड़ता है बेचने से पहले कि आपके पास जितना स्टॉक है ना, जैसे ऑफिसर के पास स्टॉक है तो उसका एस्टिमेट करना है, सारा नहीं बेचना है, जितना लगेगा उसका मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करके बेचना है। हाँ, रिकवरी दोनों कर सकते हैं ऑब्वियसली। ओके, बैलेंस पॉइंट्स वी विल नॉट रीड टुडे, we will read it next time whenever we meet, hopefully soon। okay, थर्सडे है क्या क्लास? आई डोंट थिंक, नहीं है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तो नहीं है। ओके, एनीवेज थोड़ा डीटी है, गुड। एनीवेज आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू, लेट्स सी whether you remember something from adjudication। section 73, what is the time limit to issue notice? 2 years 9 months। और 74 में 4 years 6 months। ऑर्डर पास करने के लिए 73 3 years, 74 5 years। ये सब टाइम लिमिट शुरू कहां से होता है वो तो नहीं पता। ड्यू डेट फॉर फाइलिंग एनुअल रिटर्न, ठीक है। एरोनियस रिफंड का केस रहा तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिफंड, जिस दिन रिफंड मिला था ना वहां से डिपार्टमेंट को टाइम मिलेगा टू इश्यू नोटिस एंड पास ऑर्डर। हाँ, पेनल्टी में कुछ रिलीफ मिलता है क्या? हाँ मिलता है ना। इफ यू पे एंटायर अमाउंट बिफोर सर्विस ऑफ नोटिस 0 and 15%, within 30 days from issue of show cause notice 0 25%, within 30 days of communication of demand order 10% of tax or 10,000 whichever is higher, and वहाँ 50%, and maximum 10% of tax or 10,000 whichever is higher, and वहाँ 100%। अरे एक चीज तो पूछना ही भूल गया, ये 10% ऑफ टैक्स विल यू डबल इट फॉर IGST? नो, क्योंकि टैक्स अपने आप डबल हो जाता है, उसको डबल करने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो परसेंटेज ऑफ टैक्स यू नेवर डबल, बट 10,000 को डबल करोगे क्या? हाँ, 10,000 इज ऑफ CGST एक्ट, तो IGST में वो हो जाएगा 20,000। डोंट वरी, इसका पूरा एक सम आएगा इन ये ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, जब हम पेनल्टीज डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देन वी लर्न अबाउट, इज देयर अ ओपन एंडेड प्रोविजन जहां कभी भी शो कॉज नोटिस इशू कर सकते हैं?
where we are collecting an amount representing it as tax. ठीक है, and it is not withstanding anything. पर वहां order pass करने का time limit है. Yes, order has to be passed within 1 year from date of notice. Okay. Is interest mandatory if not mentioned in the notice? Yes. Can the order amount be more than the tax amount in show cause notice? Never ever. पेनल्टी नहीं लिखा है नोटिस में, विल इट बी इन ऑर्डर? नहीं 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 नहीं, खाली इंटरेस्ट इज मैंडेटरी. ठीक है, अगर 73 74 का पेनल्टी लग गया है तो क्या किसी और प्रोविजन में पेनल्टी लग सकता है? नहीं. अगर 74 is held to be invalid, मतलब I was able to prove that genuine केस है बाबा, लेटर सबमिट कर दिया था डिपार्टमेंट को, तो it is deemed that notice is issued for 73. फिर वो 73 के हिसाब से टाइम लिमिट चेक करना पड़ेगा वापस. ठीक है. देन क्या आप स्टेटमेंट इशू कर सकते हो एज अ ऑफिसर? Yes, if the matter is same, then for subsequent periods you can issue a statement. अगर नोटिस को स्टे कर दिया है कोर्ट ने, तो जितने टाइम के लिए वो स्टे है, दैट विल बी एक्सक्लूडेड फॉर टाइम लिमिट्स ऑफ इशूइंग नोटिस एंड डिमांड ऑर्डर. ओके. अगर मेन प्रोसीडिंग खत्म हो गया है तो कनेक्टेड पर्संस का प्रोसीडिंग भी खत्म समझो. पर टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे करने का ये मतलब नहीं है कि प्रोसिक्यूशन, दैट इज जेल प्रोसीडिंग्स, कैन नॉट बी इनिशिएटेड. वो भी हम लोग पढ़ेंगे. प्रोसिक्यूशन इज आल्सो पार्ट ऑफ सिलेबस. ओके. देन इफ यू हैव पेड C plus S instead of I, can you recover it? Yeah, you can apply for a refund application after paying the correct tax. Unutilized ITC ZRS का फॉर्मूला याद आ रहा है? कौन सा ZRS? हम किसी ZRS को नहीं जानते. Turnover of ZRS under turnover of ZRS of goods plus turnover of ZRS of services divided by adjusted total turnover into net ITC. Net ITC क्या था? ITC on inputs and input services. Capital goods का नहीं मिलता है. ZRS of goods was value or 1.5 times of domestic, whichever is lower. And value is also defined. Invoice value or FOB value as per shipping bill, whichever is lower. ZRS of services was easy. Invoice or payment, whichever is later. जब दोनों चीज हो जाएगा तभी. Adjusted total turnover में सारा टर्नओवर इंक्लूड होता है, एग्जेम्प्ट नहीं इंक्लूड होता है. और 89 4A 4B तो जहां भी एक्सक्लूड होता है, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में भी एक्सक्लूड हो जाता है. लास्ट वन, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मूला था. टर्नओवर अंडर इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इनटू नेट आईटीसी ऑन इनपुट्स. ये तो आईटीसी का प्रोपोर्शनेट हो गया, माइनस आउटपुट का प्रोपोर्शनेट करना है. टैक्स पेएबल अंडर इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर इनटू ITC on inputs divided by total ITC on input and input services. तो हम लोग क्या कर रहे थे? ITC से आउटपुट माइनस कर रहे थे टू फाइंड द रिफंड. थैंक यू फॉर 1 minute एक्स्ट्रा. मिलते हैं नेक्स्ट वीक होपफुली. टेक केयर. बाय बाय.